Good evening, madam. Yeah, good evening. Good evening, madam. Good evening, all of you. Sorry, there was a network issue. That's why I wasn't able to join it on time. Just a second. Okay, so today we will be studying about verbs and we will also discuss about how to do conversation. Some topics will be given one by one. Each one of you are going to talk to each other like in English only. So first we will complete verbs. Tomorrow we will understand some rules related to verbs. Just basics of what is verb and what are different parts, different types of verbs. We will study about that only today. Okay. Let me share my screen. Am I audible? Yes, yes. Yes, ma'am. Okay. Okay. So everyone can see my screen now. Is it visible? My screen, is it visible to everyone? Yes, yes. Okay then. So now today we are going to study about verbs. Previous class we had discussion about what is verb. So what is verb? Can anyone tell me? Verb does what? It describes actions, right? Expresses some actions, right? So here are some examples. Verb may tell us what a person or thing is doing. For example, here the clock strikes and what is done to a person or thing. For example, here Sarah was scolded. Just a second. Okay, doing word is called verb. Okay, good. That also you can say like that also. Okay. Now what a person or thing is here you can see. So in the family of sentence, verb rules over the domestic affairs and does the things asked by the subject. Okay. So it is the doer of the subject. Verb is what? It is the doer of the subject. Just a second. Okay. So here we discussed about some examples. Here what you can see that the teachers write on the blackboard. So the action which is written over here is writes, right? So writes is what? It is your verb. Okay. The singer sings the song. Sings is what? It is a verb because it is describing the action. That singer is doing what? Singer is singing the song. Okay. Then my neighbors live in Delhi. So here what it is saying that neighbors they live where? They live in Delhi. So live is what? It is an action. Then Aman exercises regularly. Aman is doing what? Aman is doing exercise. So exercises is what? It is your verb. Then child cries. Child is doing what? Where questions comes like what the subject is doing. Okay, what the subject is doing, that is called verb. Okay, so verb is nothing but it is the doer of the subject. Then different types of verb. There are main verb and helping verb. Okay, the main verb here you can see some of the examples. Okay, main verb is what describes the main action performed by the subject. Okay, and the helping verb are those which assist your main verb, which help your main verb, like is, are, was. These are what? These are your helping verbs. Okay, here main verb example you can see. Main verb is fighting, water, chirping. Okay, the mothers are fighting a battle each. Okay, the fighting is what? Your main verb.
Are is what? Your helping verb. This is your helping verb, this is your main verb. Okay. Then we will water the plant daily. Will water plant. Water is what? Main verb. Okay. Then just a second. Okay. We discussed about all this example in the previous class. Okay. You have to identify the main verb and the helping verb over here. Okay. You can go through this exercise. We'll discuss. I will share the PDF in group. You can go through it. I will share the answers later on. Okay. These are just exercises. Now verb classification. Your verb is classified as finite and non-finite verbs. Okay. Finite verbs are what? First of all, how a sentence is formed. Can anyone tell me how a sentence is formed? What constitutes a sentence? Subject, verb, and agreement. Object, not agreement. Subject, verb, and Yes. object. Okay. Okay. So, can anyone tell me daily life example for verb? How you can relate verb with your daily life example? As I said in while I was teaching parts of speech, where there was a few overview related to verb, that without verb a sentence is incomplete, right? That means verb is compulsory for any statement or sentence. Without a verb, your sentence is incomplete. Okay. So what can anyone tell me any example related to verb, daily life example, that without this that particular thing that cannot perform, something like that? Read, write, watch, daily life. Not like this example, like verb, how you can relate verb with your daily life example. If I'll just give 1 minute, otherwise I will just tell you how you can relate verbs with daily life examples. I do watch online class every day. Not like this, some other way. Means, uh, like I'm saying your car. Okay. Yes. How means if a car doesn't have an engine, will it be able to move? No. No, right? No. So you can relate your verb with that engine part. Okay. A car will have tires and all different parts make a car, but without engine your car is not going to run. It's useless. Okay. Yes. Yes. So similarly you can call this verb as a engine, okay, of a sentence, or doer of the complete it, doer of the, Doer of subject. very good, doer of the subject. Okay. Now finite verbs, they are further classified into transitive and intransitive verbs. Okay. In that you will be learning about auxiliaries and tenses also. Okay. But since we have to complete this adverb, adjective part and conjunction, interjunction part, so we will cover some tenses, like till means some little tenses over here, and further will be in the future classes. Whatever will means related to tenses will be studying in the coming classes, but not now. We'll just study few topics related to tenses today. Then after this, you will study about non-finite verbs. In non-finite verbs are classified into gerunds, present participles, past participles, infinitives. In that infinitives, we will study about how your verb is means you can relate it with to, and without to, how you can write a sentence like that. Okay. So first of all, we will study about finite verbs. As I said, finite verb, they are classified into transitive and intransitive verbs. So first of all, what is finite verbs? Let us understand that. Okay.
A verb that agrees with its subject in number, tense or person is said to be finite verb. Okay. Verb which agrees with its subject. Okay, जो verb अपने subject के साथ agree करता है किसमें, number, tense और person में, उसे finite verb कहेंगे. Okay. In other word क्या कह सकते हैं, finite verb we cannot make a sentence, means बिना finite verb के आप sentence नहीं बना सकते. Okay. Without a finite verb you cannot make a sentence. Okay. Or what you can call verb which has present or past form are called what? They are called finite verbs. Okay. Now here here it is written the main verb which changes their form according to the subject of the sentence. Okay. You call it as what? Finite verbs. They can be transitive or intransitive. Okay. That transitivity and intransitivity will be related to what? The relationship it has with other words in the sentence. Okay. Here are some examples. The old man walks slowly. My grandparents walk hurriedly. Here you will see, means if you remove this word walks or walk, what happens? Will your sentence be complete? The old man slowly. My grandparents dash hurriedly. Means my grandparents hurriedly. Does it make any sense? No. No, right? So what it is said that without a finite verb we cannot make a sentence. Okay. And a finite verb will always change according to the subject in its number, tense and person. Okay. Now here you will see there is a the old man walks slowly. Okay. The old man walks slowly. Here old man is what? Is singular and it will take singular verb walks, walks. Okay. My grandparents walk hurriedly. Here walk, my grandparents, they are plural, right? Okay. It is taking plural verb walk. Okay. Understood the difference? Yes, ma'am. So finite verb does what? It shall always change according to the subject in its number, tense or person. So here in the first example there is one person. Okay. Single person, so singular verb. In the second statement double means two persons are there, or you can call it as grandfather, grandmother. Okay. So that it is a plural. So what happens? It is taking what? The subject is plural, so it is taking plural verb. Okay. Understood finite verb? समझ में आया फाइनाइट वर्ब क्या कर रहा है? फाइनाइट वर्ब आपका क्या करेगा? ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके नंबर को देख के, टेंसेस को देख के और पर्सन को देख के, उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनाइट वर्ब चेंज होगा. ओके. सब्जेक्ट में जैसे सिंगल पर्सन है, डबल पर्सन है, मीन्स मेनी पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनाइट वर्ब होगा सिंगल या प्लूरल फॉर्म में. ओके. समझ में आया? अभी फाइनाइट वर्ब दे आर व्हाट? फाइनाइट वर्ब आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. ओके. एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? एनी कंफ्यूजन? समझ में आया? Am I going fast? Am I going? No? Is it okay? I mean, are you able to understand what I'm saying? Yes, ma'am. Only Aman is saying. What about others? Yes, ma'am. Okay. So now we will understand about finite verbs further classification. They are classified as transitive and intransitive verbs. Okay. Transitive word means transitive. What comes to your mind when you hear the word transitive? No idea, ma'am. ट्रांजिटिव का हिंदी मीनिंग क्या होगा?
Transitive. Transfer. ऐसा हो सकता है तो मूव. हाँ ट्रांसफर भी कह सकते हैं आप एक जगह से. हाँ Change. ओके, तो यहाँ पे अभी हम समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिटिव वर्ब के दो कैरेक्टरिस्टिक होंगे. पहला जो होगा एक्शन वर्ब होगा. एक्शन वर्ब मतलब क्या, जो डुएबल मीन्स जो दिखाता है कि करना है उसे, डुएबल एक्टिविटी जैसे किक, वॉन्ट, पेंट, राइट, ईट, क्लीन, ये सब क्या है आपके एक्शन वर्ब है. सेकंड, इसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ओके, समथिंग और समवन हु रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. नाउ आपका एक्शन वर्ब जो रिसीव करेगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब का सेंस क्या निकल के आ रहा है, मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाना, राइट, या एक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पहुंचाना, राइट, इंफॉर्मेशन को. समझ में आ रहा है ट्रांजिटिव वर्ब का काम क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम कर रहा है. ओके, इज इट बोरिंग? नो रेस्पॉन्स. No, ma'am. ओके, एक्सप्लेन इट अगेन. क्या मैम एक्सप्लेन इट अगेन. एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव मीनिंग ही समझ लो. आपके ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि मतलब एक पर्सन या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पहुंचाने का काम यहाँ पे कर रहा है. ठीक है, या ट्रांजिटिव वर्ब हम कह सकते हैं वह वर्ब जो रिक्वायर करता है क्या, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत जिसको पड़ती है टू रिसीव द एक्शन. ओके, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है एक्शन को रिसीव करने के लिए. जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब का दो कैरेक्टरिस्टिक है. पहला एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब मतलब क्या, डुएबल. डुएबल का मतलब कि करने वाला, एक तरह से जो कार्य हो रहा है एक तरह से, राइट. एंड सेकंड क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसके पास. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों, ताकि वहां तक वो एक्शन जो है रिसीव कर सके. ओके, ना अभी ट्रांजिटिव वर्ब का कुछ एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ही मेट हर yesterday, she wrote a story last year, rust destroys iron. So इस सेंटेंस में वर्ब्स क्या हैं आपके, met, wrote और destroys. ओके, अब हर सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछोगे whom और what. अब ये याद रखना, आप ये हाईलाइटेड जो है whom और what मीन्स जब क्वेश्चन निकल के आए कि किसको या कौन और क्या. ओके, ओके, whom किसको या कौन हो सकता है, या whom बस किसको. ओके, किसको रेफर कर रहा है. ठीक है, what मीन्स क्या रेफर कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिमाग में अपने रखना है, ट्रांजिटिव वर्ब जब उस वर्ब से ये सेंस निकल के आए कि मीन्स किसको रेफर कर रहा है या क्या रेफर कर रहा है. तो आपका एग्जाम्पल आप दिया हुआ है पहले क्वेश्चन का एग्जाम्पल का, ही मेट हर yesterday. तो ये किसको मेट किया, मीन्स ही मेट whom, ही मेट हर, राइट. Father. सेकंड है, शी रोट ए स्टोरी लास्ट ईयर. रोट व्हाट, रोट स्टोरी. Story. स्टोरी. सेकंड, थर्ड है आपका रस्ट डिस्ट्रॉयज आयरन. सो इट डिस्ट्रॉयज व्हाट, आयरन. Iron. ओके, तो जहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब में whom और what का सेंस निकल के आ रहा है, मतलब इसका आंसर हमें चाहिए, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा. ठीक है, एक चीज आप बस ये देखो कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ. ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, हर हो गया, स्टोरी हो गया, आयरन हो गया. ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही हुआ, शी हुआ, रस्ट हुआ सब्जेक्ट. ओके, उसके बाद ये हर आपका ऑब्जेक्ट हुआ, स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट हुआ, आयरन आपका ऑब्जेक्ट हुआ. ओके, इन दोनों के बीच में क्या लगा है, ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या कर रहा है, एक्शन को क्या करवा रहा है, ऑब्जेक्ट तक पहुंचा रहा है. मीन्स
ये मीन्स सब्जेक्ट जो ही है वो क्या कर रहा है, मिल रहा है किससे, उससे। कल कल मिला था, ही मेट हर यस्टरडे, राइट। शी रोट ए स्टोरी लास्ट ईयर, उसने जो है स्टोरी लिखा था लास्ट ईयर। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। स्टेटमेंट फिर से यहाँ पे पढ़ना आप कि ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है कि एक्शन वर्ब होना चाहिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है जो रिसीव कर रहा है आपका एक्शन वर्ब मेट। अ स्टोरी रिसीव कर रहा है रोट को, आयन रिसीव कर रहा है डिस्ट्रॉय को। ओके, नाउ ट्रांसिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, टारगेट होगा, डेस्टिनेशन होगा, पर्पस होगा, एम होगा। ओके, एक्शन वर्ब का। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल मैट रोड डिस्ट्रॉय, ये आपकी क्या है, वर्ब्स है और इनके जो ऑब्जेक्ट है या टारगेट क्या है, हर स्टोरी और आई एम है। ओके, नाउ इनको ट्रांसिटिव फ्लो कहा गया है, इनको ट्रांसिटिव फ्लो कहा गया है। पारदर्शिता कह सकते हैं इस तरह से। Yes. ओके, so we call this verb transitive। माइक किसी का ऑन है, ऑफ कर ले। ट्रांजिटिव वर्ब्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी है। मीन्स एक से ए टू बी तक जाने का जो है काम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, वो ट्रांजिटिविटी होगा। वाई आर दिस कॉल्ड ट्रांजिटिविटी, व्हाट इज ट्रांजिटिविटी, हम समझने की कोशिश करते हैं। टू ट्रांजिट मीन्स टू पास थ्रू। ओके, each of the verbs met, wrote and destroys in our example have its action conveyed। मीन्स इसका एक्शन जो है वो किसके पास जा रहा है, ऑब्जेक्ट के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, राइट। We might also say that the action begins with the subject he, she, rust in our sentence and passes through the verb of the direct object. This property of verb is called transitivity, hence we call the verbs transitivity। अब इस तरह से वर्ब हम याद करेंगे तो इनको याद करना इजी होगा, ठीक है। बस आप याद रखना कि ट्रांसिटिव वर्ब है जो ट्रांसिटिविटी शो कर रहा है। ओके, जिनके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, ईट, ड्रिंक, रीड, राइट, प्ले, सी, हियर, आंसर, फाइंड, लव, लाइक, अंडरस्टैंड, कैच, ब्रिंग, सिंग, मीट, गिव, टेक, गेट, फॉरगेट, बाय, सेल, पे, हेल्प, ये सब आपके ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। The teacher answered the question। अब यहाँ पे टीचर answered what, Question. क्वेश्चंस, राइट। तो answered what यहाँ पे आपका समझ में आ गया कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया क्वेश्चन और answered आपका ट्रांसिटिव वर्ब। My friend bought a house, तो यहाँ पे bought what, bought a house। अब एक चीज याद रखना, whom जो होगा वो इंसान के लिए होगा, for persons। ओके, वॉट जो होगा वो एनिमल या थिंग्स के लिए होगा, ठीक है। द चिल्ड्रन फाउंड द मनी, चिल्ड्रन फाउंड वॉट, चिल्ड्रन फाउंड द मनी, राइट। तो फाउंड आपका वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब हुआ, मनी आपका ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोस्ट इंडियंस लव क्रिकेट, इंडियंस लव वॉट, इंडियंस लव क्रिकेट। ओके, तो ये चीजें अभी समझ में आ गई एग्जाम्पल से। द रॉबिन्सन्स लाइक फुटबॉल, आपका ट्रांसिटिव वर्ब है यहाँ पे लाइक, लाइक व्हाट, फुटबॉल। ओके, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स है। ओके, सिल्विया किक्ड जुआन अंडर द टेबल, किक्ड हुम, किक्ड जुआन, जुआन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किक्ड आपका ट्रांसिटिव वर्ब निकल के आ रहा है। Joshua wants a smile from Leah, his beautiful but serious lab partner। So wants what? Wants a smile।
सो ट्रांसिटिव वर्ब आपका वांट्स हुआ, स्माइल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ये सब आप देख लेना, पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, एग्जाम्पल्स ही है। नेक्स्ट, ये भी ट्रांसिटिव वर्ब रिलेटेड एग्जाम्पल्स है। इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं हम ये समझते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होती। ओके, इंट्रांसिटिव वर्ब कौन से वर्ब होते हैं जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते। फॉलोज एन एक्शन, द वर्ब इज ओके। नाउ दिस इज इंट्रांसिटिव वर्ब्स के दो कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रांसिटिव वर्ब के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे? एक एक्शन वर्ब था और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, राइट। बट यहाँ पे आपका क्या है? एक्शन वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक्शन वर्ब है बट ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे इसका दो कैरेक्टरिस्टिक ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक्शन वर्ब जो डुएबल है, जैसे कि अराइव, गो, लाई, स्नीज, सिट, डाई, ये सब आपके इंट्रांसिटिव वर्ब एक्शन वर्ब से एक तरह से, और इनके पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो ये एक्शन को रिसीव कर सके। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है वॉक, जंप, स्लीप, सिट, लाई, स्टैंड, वीप, नील, फॉल, फ्लाई, फ्लो, रिमेन, डाई, बिलोंग, वेट, कम एंड गो। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखते हैं। वी वॉक टू द रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हुम और वॉट का सेंस तो नहीं निकल आ रहा है, यहाँ पे वेयर का सेंस निकल के आ रहा है, राइट। वी वॉक टू द रेलवे स्टेशन, वेयर का सेंस निकल के आ रहा है, राइट। द चिल्ड्रन जम्प विद जॉय, हाउ, राइट। बेबी स्लीप फॉर मेनी आवर्स, फॉर हाउ मेनी आवर्स, बेबी स्लीप फॉर हाउ मेनी आवर्स, राइट। हाउ करके सेंस निकल के, यहाँ पे हुम और वॉट का सेंस नहीं निकल के आ रहा है, राइट। एक चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो। इसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा। ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। वॉक के बाद हर नहीं है, जंप के बाद हिस या देम नहीं है, स्लीप के बाद हिस हर ऐसा कुछ नहीं है, स्टूड के बाद भी हिस हर ऐसा कुछ नहीं है, राइट। मैम ट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट हो सकता है क्या? इंट्रांजिटिव को कन्वर्ट कर सकते हैं बट अभी ऐसा तो कुछ है नहीं, कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है। आपको बस समझना है कि मतलब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, कन्वर्जन रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके मैम। जी, तो आपका इंट्रांजिटिव वह है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। Unlike transitive verb, it will not have a direct object receiving the action. Okay? यहाँ पे आपको कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर में आ रहा है एग्जाम्पल में? नहीं, राइट। आपका ये वॉक के बाद देमसेल्फ या हिमसेल्फ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, राइट। वी वॉक हिमसेल्फ देमसेल्फ ऐसा कुछ, आर सेल्फ वी वॉक आर सेल्फ ऐसा कुछ नहीं है, राइट। आर सेल्फ Yes, होता ma'am. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता, राइट। बट Yes. वो चीज है नहीं, इसलिए ये इंट्रांजिटिव हुआ। जंप विथ जॉय, द चिल्ड्रन जंप विथ जॉय, चिल्ड्रन जंप देमसेल्फ या हिमसेल्फ ऐसा कुछ भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, राइट। मीन्स जब नाउन रिलेटेड चीज है, नाउन या प्रोनाउन ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट, आपका वर्ब के साथ, तो उस वक्त वो आपका इंट्रांजिटिव है। मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। ओके, कोई कंफ्यूजन अभी तक? समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next, identify the intransitive verb. Huffing and puffing, we arrived at the classroom door with only 7 seconds to spare.
तो यहाँ पे क्या है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब? Arrive. Arrive, right? Huffing and puffing, we arrived at the classroom door with only 7 seconds to spare. And Arrive. huffing and puffing means Just a second. Huffing and puffing means तेज तेज सांसें लेना एक तरह से. okay. ओके. एंड पफ, आप ये चीजें समझ लो ना. पफ का मतलब क्या होता है? फुल्ला रहता है, राइट? ब्रीद इन ब्रीद आउट, ऐसा मीन्स. दौड़ के आने के लिए. जी, दौड़ के आने के लिए भी कह सकते हैं. पफ वर्ड से आप दिमाग में आप वो कर सकते हो. पफिंग, पफ होता है ना फूला फूला सा, हाँ. तो उससे आप दिमाग में अपने. अपना ये सब. ओके. हाफ, हफिंग, हाफना, हाफना भी कह सकते हैं. ओके. James went to the campus cafe for a steaming blow of squid eyeball stew. So यहाँ पे आपका क्या निकल के आ रहा है? इंट्रांजिटिव वर्ब निकल के आ रहा है went, right? नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं. एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ चुके होंगे वैसे. एक्सेप्शन है यहाँ पे कुछ. You will often find transitive verb used intransitively without an object. यहाँ पे बोल रहा है कि आप हो सकता है कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब को देखेंगे कि वो इंट्रांजिटिवली यूज किया गया है, मीन्स बिना ऑब्जेक्ट के. दे आर ईटिंग, वी प्ले इन द इवनिंग, आई अंडरस्टैंड. सो ये सब आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. कहने को तो ट्रांजिटिव का सेंस निकल के आ रहा है, बट इनको इंट्रांजिटिव की तरह यूज किया गया है. और एग्जांपल्स देख लेते हैं. At rare times, intransitive verbs are used transitively. How did you cover all that distance? We walked it. So walked क्या है? Walked क्या है आपका? इंट्रांजिटिव वर्ब है. इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इट, जो कि क्या एक तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, राइट? Yes, ma'am. ओके. तो ट्रांजिटिव का सेंस दे रहा है, राइट? At rare times, intransitive verbs are used transitively. Okay. I cannot stand such nonsense. Stand के पास ऑब्जेक्ट लगा हुआ है नॉनसेंस इस सेंटेंस में. ओके. Well, how to identify exceptions? एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मीन्स ये रेयर केस में है. वैसे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे कुछ. Yes. ओके. Yes, ma'am. कुछ वर्ड्स हैं जिनका सेंस निकल के आ रहा है कि उनके पास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई कैनॉट स्टैंड, ये इतना हो सकता था. आई कैनॉट स्टैंड ऑब्जेक्ट के बिना, राइट? सिर्फ इतना हो सकता था ये स्टेटमेंट, लेकिन सच नॉनसेंस लगा के इसको ट्रांजिटिव बना दिया. ओके. Yes, ma'am. वी वॉक्ड हो सकता था, लेकिन इट लगा के इसको ट्रांजिटिव बना दिया. Yes, ma'am. Okay. Exceptions can be used as both. Realize that many verbs can be both transitive and intransitive. An action verb with direct object is transitive, while an action verb with no direct object is intransitive. ये चीज क्लियर हो गई आप लोग को कि जो एक्शन वर्ब जिनके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपके ट्रांजिटिव कहलाएंगे, और जिनके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपके इंट्रांजिटिव कहलाएंगे. ओके. एक्सेप्शन. Yes, ma'am.
can be used as both. Some verbs such as arrive, go, lie, sneeze, sit and die are always intransitive. It is impossible for a direct object to follow. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि जैसे यहाँ पे arrive, go, lie, sneeze, sit, come and sit. ओके ये एक जो है इंट्रांजिटिव है, मीन्स इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना इम्पॉसिबल है. ओके ये मतलब इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो करे ऐसा पॉसिबल नहीं है. कुछ एग्जांपल और देख लेते, जैसे स्नीज रिलेटेड एक स्टेटमेंट कोई दे, अगर स्नीज रिलेटेड गिव सम स्टेटमेंट. जैसे he is sneezing, he sneezed. Yes, ma'am. और एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, सिट का तो हो चुका है. प्लीज डोंट टेल लाई, राइट. मीन्स इन सब के बाद आपका ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहा, राइट. जो वर्ब्स यहाँ पे हैं इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं, इम्पॉसिबल है ऐसा, मीन्स कि उनको ऑब्जेक्ट फॉलो करे. ये एक्सेप्शन है, जरूरी नहीं है, मीन्स कभी कभी हो सकता है, मीन्स ऐसा. अदर एक्शन वर्ब हाउएवर कैन बी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव डिपेंडिंग ऑन व्हाट फॉलोज इन द सेंटेंस. यहाँ पे और कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव की तरह से. बिकॉज ऑफ ब्लड शुगर प्रॉब्लम्स रोजा ऑलवेज ईट्स बिफोर लिविंग फॉर स्कूल. यहाँ पे आपको पता करना है कि ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है. ओके बिकॉज ऑफ ब्लड शुगर प्रॉब्लम्स रोजा ऑलवेज ईट्स. यहाँ पे वॉट और हुम का सेंस तो निकल के नहीं आ रहा है, तो ईट्स आपका क्या हुआ, इंट्रांसिटिव वर्ब, राइट. Yes, ma'am. If there is no leftover pizza, Rosa usually eats whole grain cereals. So यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है cereals, राइट. Eats whole grain cereals, eats whole grain cereals. ये सब आपका क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सेंस निकल रहा है, तो ईट्स क्या हो गया आपका यहाँ पे ट्रांजिटिव हो गया, जबकि यहाँ पे ईट्स जो है इंट्रांजिटिव है. ओके तो बस इतना दिमाग में रखो, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव होगा. कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है कि वो, जैसे स्टैंड वगैरह का एग्जांपल यहाँ पे दिया था एक्सेप्शनल केस में, वॉक डिट. ओके आई कैनॉट स्टैंड सच नॉनसेंस, ऐसा एग्जांपल था अभी. ओके कि वो इंट्रांजिटिव है लेकिन ट्रांजिटिव की तरह वर्क कर रहे हैं. During cross country practice, the men run over the hills, through fields, across the river and along the highway. Runs over the hills. Runs where आ रहा है यहाँ पे सेंस, राइट. Runs over where, ऐसा कुछ सेंस निकल, whom और what का सेंस तो निकल के नहीं आ रहा है, No, ma'am. राइट. तो आप बस whom और what का सेंस में रखे रहो कि whom और what का सेंस निकल के आता है. जब भी कंफ्यूजन हो तो आपको क्लियर आ जाएगा कि हाँ वो ट्रांजिटिव ही होगा, whom और what. अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं पकड़ में आ रहा है तो whom और what वाला पकड़ लेना आप, ठीक है. और कुछ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स के बारे में यहाँ पे आ रहा है. लिंकिंग वर्ब्स आपके वीक वर्ब्स होते हैं, मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अलावा जो वर्ब है हमारा वो लिंकिंग वर्ब्स होता है फाइनाइट वर्ब की फैमिली में. ओके लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसको, हेल्प टू लिंक द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस विद द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके लिंकिंग वर्ब्स दो तरह के हो सकते हैं, एक जो स्टेट डिनोट करता होगा, दूसरा वो किस स्टेट में है, वो मीन्स चेंज, उसके स्टेट में क्या चेंज आया है वो चीज. ओके जैसे एग्जांपल आपको बता देते हैं,
द मैन वॉज साइलेंट, यहाँ पे वो स्टेट डिनोट कर रहा है, राइट। मीन्स मैन क्या है, वो शांत है। द मैन वॉज हैप्पी, द मैन वॉज साइलेंट, ये क्या है, आपका स्टेट डिनोट करा। द मिल्क टर्न्ड सोर, यहाँ पे स्टेट का पता चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स आपके क्या है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स आपके वीक वर्ब है, या आप कह सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, जो हेल्प करते हैं लिंक करने को, किसको, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सब्जेक्ट को, उसके साथ लिंक कर जो कर रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब। ओके, अभी तक कोई कंफ्यूजन? वर्बल आपका नॉन, ये कल पढ़ेंगे ये टॉपिक, अभी के लिए इतना ही। अभी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि कन्वर्सेशन भी करना है। इज इट क्लियर अभी तक जो पढ़ाया? Some examples we will do related to verbs. आपका verbs 3 फॉर्म लेता है, प्रेजेंट फॉर्म जिसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट फॉर्म जिसको सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको थर्ड फॉर्म कहते हैं। ओके, तो इसके अलावा और क्या होता, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं। जैसे 3 फॉर्म्स मैंने बताया, जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं बेस फॉर्म, जो सेकंड फॉर्म होता है या पास्ट टेंस वाला, थर्ड फॉर्म जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल। ओके, नाउ रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में जानते हैं। रेगुलर वर्ब्स आपके क्या होते हैं? अ वर्ब विच फॉर्म्स इट पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग ईडी, डी और टी। मीन्स रेगुलर वर्ब्स आपके क्या होते हैं, जब आपके प्रेजेंट फॉर्म में क्या ऐड हो जाता है, ईडी, टी या डी जब ऐड हो जाता है। ओके, जस्ट अ सेकंड। लिंकिंग वर्ब्स के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। इसके बाद आज का टॉपिक ये रेगुलर और इरेगुलर के बाद हम क्लोज करेंगे, इसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इज इट ओके? शैल आई कंटिन्यू दिस वर्ब्स और स्टार्ट द कन्वर्सेशन? कुछ एग्जांपल्स करने के बाद ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड रेगुलर वर्ब्स। ओके, रेगुलर वर्ब्स कौन से वर्ब होते हैं? अ वर्ब, ओके, which forms it past form या past participle form by adding ed, d और t to the present form। ओके, जब आपके प्रेजेंट फॉर्म में क्या लग जाता है, ईडी, डी और टी। ओके, तब ये आपके क्या कहलाएंगे, रेगुलर वर्ब्स। ओके, अ वर्ब विच फॉर्म्स इज पास्ट फॉर्म्स और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग ईडी, डी और टी टू द प्रेजेंट फॉर्म। नाउ एग्जांपल जैसे आप देख लो, वर्क है आपका, राइट, वर्क है आपका, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, वर्कड। ओके, और एक क्या हो सकता है, वर्कड ही होगा, वर्कड का वर्कड ही होगा। ओके, ये पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट फॉर्म भी है और पास्ट पार्टिसिपल भी है। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखना।
ओके। नाउ जैसे सेंड का एक एग्जांपल, सेंड को हम कैसे लिख सकते हैं? SENT। ओके। तो जो वर्ब में हम क्या करते हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म में है, ये प्रेजेंट फॉर्म में है, और ये पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। ओके, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, वह वर्ब जिनका फॉर्म करते हैं, जिनका हम पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करते हैं, कैसे? ईडी, डी और टी ऐड करके उनके प्रेजेंट फॉर्म में। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब्स क्लियर हो गया। रेगुलर वर्ब्स क्लियर हो गया। क्या होता है? रेगुलर वर्ब वह वर्ब है जिनका हम पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं जब उनके प्रेजेंट फॉर्म में ईडी, डी या टी ऐड करते हैं तब। ठीक है, समझ में आया? नो रेस्पॉन्स। क्या ये टॉपिक कल पढ़े? अमन, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? Shall I stop today this topic, verb related topic? Let's do some example then, some exercises. Okay, verbs related. Okay, क्वेश्चन है, क्लासिफाई द वर्ब इनटू ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। आपको क्लासिफाई करना है कि ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव। ओके, क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, he stands in an open jeep। ये इसमें आपको बताना है कि आपका ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव। कैन एनीवन? Intransitive. इनट्रांजिटिव। नाउ इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है आपका यहाँ पे? Stands. वेरी गुड। स्टैंड्स आपका क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल रीजंस एक्सप्लेन हिज व्यूज। सेवरल रीजन एक्सप्लेन हिज व्यूज। ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव यहाँ पे क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब Explain. एक्सप्लेन। वेरी गुड, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, थर्ड, gains come through marriage। gains come through marriage। यहाँ पे आपको बताना है कि ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव। Intransitive. वो वर्ब कौन सा है? Come. वेरी गुड। तो जो एक्शन वर्ब है, तो पहले में आपका एक्शन वर्ब स्टैंड्स है, इसको कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। एक्सप्लेन, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिज व्यू, राइट। कम को कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो। Meaning sound is lagging. Am I audible now? Yes. ओके, तो कम को आपका कोई ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आपका कम क्या हुआ?
Sound is breaking. Is it clear now? Yes. Okay. So now यहाँ पे कम को कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो कर नहीं रहा है, इसलिए आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ. ओके. फोर्थ क्वेश्चन. Elders will give valuable advice on your career. Advice on your career. ट्रांजिटिव है. Transitive है. Intransit. हाँ. Who is saying intransitive? I say, ma'am. अमन intransitive बोल रहे हैं. Yes, ma'am. तो आओ. ट्रांजिटिव कौन बोल रहा है? मैडम नहीं बोला था. विकास ट्रांजिटिव बोल रहा है. तो अब दोनों लोग में बताओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव? Intransitive, ma'am. नहीं, ये ट्रांजिटिव होगा. ओके. ट्रांजिटिव ही होगा. विल गिव जो है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा. विल गिव व्हाट? विल गिव व्हाट वैल्यूएबल एडवाइस. हुम और व्हाट याद किया आपने? हुम और व्हाट. हाँ. राइट. Yes. यहाँ पे हुम और व्हाट का सेंस निकल के आ रहा है, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा. ठीक है. अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है तो हुम और व्हाट का जो सेंस निकलेगा वो भी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा. ठीक है. क्लियर हो गया अभी? Yes. Yes, ma'am. ओके. और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अभी के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है, सम ऑफ यू विल बिकम पॉपुलर. यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा इनट्रांजिटिव होगा? Intransitive. वर्ब कौन सा है? Become. विल बिकम. Will become. Will become. ओके. ठीक है. ओके. नाउ अभी कन्वर्सेशन पे आते हैं. So, how many people are here? 9 people. Okay. I will share PDF in group, okay, after completing this verb classes. Tomorrow I will share some rules also, because non-finite part is still, we have only covered the finite part, okay. Only the finite part is covered. एक auxiliary verb हमने पढ़ा था, एक auxiliary verb भी हम पढ़ेंगे. ऑक्सिलरी वर्ब वही है, हेल्पिंग वर्ब जो आपका होगा वही ऑक्सिलरी वर्ब होगा. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं. राइट. एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू वर्ब्स? ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब. अभी तक क्लियर हुआ? लिंकिंग वर्ब एक था. लिंकिंग वर्ब क्या करता है? वो स्टेट
या चेंज इन स्टेट को डिनोट करता है, राइट? लिंकिंग वर्ब। ओके, अभी तक हमने एग्जाम्पल में द मैन वॉज हैप्पी, द मैन वॉज साइलेंट का एग्जाम्पल दिया था, मीन्स उसका स्टेट, प्रेजेंट स्टेट क्या है वो बता रहा है। ओके, द मिल्क टर्न सॉर, मीन्स मिल्क कौन से स्टेट में है? सॉर है, मीन्स खट्टा है, राइट? ओके, जैसे एग्जाम्पल और दे सकते हैं, रेस्ट, फॉल, लाई, ओके, रन, स्मेल, ये सब आपके जो लिंकिंग वर्ब्स कहलाएंगे। ओके, ग्रो मीन्स एक तरह से जो स्टेट, मीन्स प्रेजेंट क्या स्टेट है और उसके स्टेट में जो भी चेंज हो रहा है वो आपका लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, एक लिंकिंग वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब ही है। लिंकिंग वर्ब आपका इंट्रांजिटिव वर्ब ही है। यस मैम। ठीक है, ओके, अभी कन्वर्सेशन पे आते हैं। जस्ट सेकंड में टॉपिक देख लूं, कौन सा टॉपिक दे। 10 पीपल्स आर हियर। ओके, हर एक को एक एक टॉपिक, क्योंकि अभी है सबके पास, मतलब ज्यादा लोग हैं नहीं, तो हर एक को एक एक टॉपिक दिया जाएगा कुछ बोलने के लिए। ठीक है, या कन्वर्सेशन भी हम कर सकते हैं कि आपको कन्वर्सेशन करना आपस में, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ज्यादा देर नहीं, 1 से 2 मिनट कन्वर्सेशन आप रखना। जस्ट a second. Aman Avinash, are you there? Yes ma'am. Avinash, okay, so turn on your mic. Avinash, turn on your mic. Okay, so आपका टॉपिक है हाउस ओनर। अविनाश अभी म्यूट कर लो आप लोग, जैसे लेट मी गिव द टॉपिक। अविनाश म्यूट कर लो आप, जैसे सेकंड में टॉपिक दे दूं तब। हाँ, आप दोनों का टॉपिक है टीचर एंड स्टूडेंट कैसे कन्वर्सेशन करेंगे। आपको ये स्टार्ट करना है, आपस में एक टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्सेशन करना है। तो टीचर कोई एक बन जाए, स्टूडेंट कोई एक बन जाए और कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दे। So who will be the teacher, who will be the student? Avinash, you will be a student? Yes, ma'am. Okay, Aman, you will be the teacher then. Start your conversation, Aman. No. Okay, you can start. Both of you can start. Avinash, what you read in previous classes? Start conversation with greeting. Greet Yes, करने के बिना yes, आप ma'am. conversation start मत करना। Okay. Hello Avinash. Yes. Like that Yes, ma'am? sir. हाँ, हेलो या गुड आफ्टरनून, कुछ भी आप ऐसे कर सकते। हाउ आर यू? How are you Avinash? I'm fine. How are you? I'm also fine. Do you remember previous class assignment? No, I don't. Do you know global warming? Yes, I thought so. Something like that. Global warming is about like it. I can't explain in words, but I know what is global warming. Global warming is like a temperature increment in our climate. Yes, yes.
tell me about more of global warming, sir. Tell me more about global warming. Okay. Okay, ma'am. Hello. No idea. You tell. Okay, sir. What is the verb? See, Hello. don't go away from the topic. Means stick to one particular topic only while you are having conversation. Okay. When it Okay, is ma'am. global warming, Okay. then stick to global warming only. Okay. Okay, okay. Yeah. So first of all, Uh, what you will say? Do Good afternoon, sir. Then other person will say, good afternoon, Avinash. How are you? I'm fine, sir. Like that, Avinash will say. So, okay. you will discuss what. See, how is the weather? If Avinash, you will ask where you were last day. Like that, you can ask your questions. And then he will say that he went to his village. Then you will ask about the yes, ma'am. temperature over there. Then after that, you will be asking about, okay, so it's so warm or hot. So can you tell me what is the reason behind this temperature like that? Then after that, आपका topic आ सकता है global warming. So what is the reason? Then you will be giving the answer as it's global warming. Global warming is responsible for this temperature. So you will be asking what is global warming? Global warming is nothing but it is the phenomena of what? Phenomena of gradual increase in average temperature of earth. Means global warming है क्या आपका? Global warming आपके जब अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है एवरेज टेम्परेचर से जब ज़्यादा हो जाता है Yes, तो ma'am. उसको ग्लोबल Yes, वार्मिंग ma'am. Yes, बोलते हैं. ma'am. ओके. तो आप इस तरह बता सकते हो. देन Okay, उसके साथ आप उसके कॉजेस और इफेक्ट का डिस्कस कर सकते हो. नाउ यू कैन डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस, हाउ वी कैन ओवरकम Okay. दिस. ऐसा करके आप कुछ डिस्कस करो. ओके. Yes, ma'am. ओके yes, देन. सो नाउ यू कैन एंड द डिस्कशन नाउ. नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमेशा याद रखना आप लोग कि जब भी आप कन्वर्सेशन करें तो एक ही टॉपिक पे स्टिक करके रहें. तुरंत सडनली टॉपिक चेंज ना करें. थोड़ा टाइम ले okay, उसको ma'am. डिस्कस Okay, ma'am. करें, 1-2 मिनट डिस्कस करें या कुछ भी, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर जाए. वो मतलब थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, मतलब नहीं जी कि जी जी. जैसे मतलब अभी अभी ग्लोबल वार्मिंग इमीडिएटली. के बाद सीधे सडन ड्रास्टिक चेंज आ गया. मीन्स वर्ब पे आ गया. मीन्स टोटली डिफरेंट टॉपिक. यस, यस, तो वो चीज़ यस मैम. बिल्कुल बट वो करना. वो कैस वो कैसा हो गया कि अभी मेरे को सोचने को थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि इमीडिएट मतलब आ नहीं जाते, मतलब वो जी जी जी. दिमाग में क्या करना है क्या नहीं, ओके थोड़ा ओके. टाइम लगता है. ओके मैम. जस्ट लास्ट टाइम यू या 5 minutes, just like that, then रियली. we can. Yes, ma'am. And some 5 minutes time. Yeah. नो नो, आज टाइम नहीं, आज डायरेक्ट ऐसे रहेगा. आपको अगली बार, क्योंकि अभी ऑन स्पॉट देखना है हमें ना, कि अभी ऑन स्पॉट अगर टॉपिक मिल रहा है तो आप कर सकते हैं विदाउट प्रिपरेशन. क्योंकि ऐसे क्या है कि Yes. गूगल करके आप ओके. टॉपिक देख लोगे, फिर थोड़ा हेल्प वहाँ से मिल जाएगा. नहीं नहीं नहीं, गूगल नहीं, वो उसको नहीं, क्या सेंटेंस बनाना पड़ता पहले. चलिए ठीक है, कोई नहीं. अभी नेक्स्ट Okay, ma'am. विकास एंड ऋषिकेश. विकास एंड ऋषिकेश. विकास. Yes, ma'am. ऋषिकेश, आर यू देयर? ऋषिकेश. ओके, समीर, यू आर देयर? समीर. Yes, ma'am. ओके. टॉपिक इज फाइंडिंग आउट एन एड्रेस. आपको एड्रेस पता करना है. सो यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइंडिंग आउट एड्रेस. Address means any address. एनी एड्रेस. फाइंडिंग आउट एन एड्रेस, एनी एड्रेस. Okay. कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए. कैसे स्टार्ट करेंगे कन्वर्सेशन आप? Hello, Samir. Hello. How are you? I am fine. You say? I am also fine. How is your day going? Repeat. How your day going? How was your day going?
How was your day? Simple. How was your day? अच्छा today Thanks for asking, but it was good. या ऐसे करके आप बोल सकते हैं. okay शुरुआत कैसे करना आपको ये बता दें. एक्सक्यूज मी समीर, ऐसे करके आप बोल सकते हैं. एक्सक्यूज मी समीर, कैन आई आस्क यू फॉर अ हेल्प. देन समीर विल से यस प्लीज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. ओके. देन आप पूछोगे कैन यू हेल्प मी फाइंड आउट दिस एड्रेस. इट मस्ट बी समवेयर नियर हियर, ऐसे करके. ओके. तो उसके बाद समीर बोलेंगे लेट मी सी. मीन्स आप हो सकता है उनको वर्बली बोल सकते हैं या पेपर पे आपके पास एड्रेस होगा तो आप उनको वो दिखा के समीर बोलेंगे या लेट मी सी द हाउस नंबर इज, ऐसा करके आप समीर कुछ भी बोलेंगे. दैट मीन्स द हाउस इज लोकेटेड लीडिंग टू समवेयर प्लेसेस, ऐसा करके कुछ बता सकते हैं. Can you please help me and find me this address? yes show me the address where You want to go. you want to go. So this is the address. This is approx 2 kilometer away. First of all, you after 100 meter, you pick the auto and go the Patliputra complex, near Patliputra complex, and Okay, but Thanks, Samir, for your help. thank you. Very good. So Sameer, आप बोलो not at all. It's all pleasure. Okay. yes, Okay then. Next, Satyanshu and Sunil. Satyanshu, are you there? Yes, ma'am. ओके. आपका टॉपिक रहेगा फार्मर एंड विलेज असिस्टेंट. मीन्स एक फार्मर और विलेज असिस्टेंट कैसे आपस में बात करेंगे. मैम एक फार्मर और क्या वॉइस में क्लियर नहीं आपका. विलेज असिस्टेंट. विलेज असिस्टेंस जी, असिस्टेंट. मतलब कि विलेज असिस्टेंस क्या होता है. जो एक तरह से मीन्स जाते हैं जांच परख करने, उनको आप कह सकते हो जो हेल्प करते हो विलेज को ग्रो करने में. मीन्स होता है ना सर्वे करने वाले लोग भी. ओके मैम. जी. हाँ सुनील. हेलो सत्यांशु. हाँ. Who is the farmer and who is the village assistant? I am the farmer. Satyanshu, what is your role? विलेज असिस्टेंट. Village Okay. assistant. Okay. So now farmer will say to village assistant, why are you this way? ऐसा करके. Why are you this way, Sunil? मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, हम आपको आवाज नहीं समझ पा रहे हैं. Okay. Am I audible now? यस. Yes, So, ma'am. why are you this way? ऐसे करके आप स्टार्ट करो. Why are you this way? Sir, why are you this way? सब फार्मर सर बोलेगा. फार्मर को इंग्लिश आती होगी. Both are both conversation are English, so Okay. obviously farmer ठीक है. knows English. ओके देन इंग्लिश में आप सर बोल सकते हैं. ठीक है. ओके. व्हाई आर यू सेइंग. Because no person is coming in village from city. You which
विलेज असिस्टेंट fruits. एक तरह से जो सर्वे करने जाते हैं विलेज वगैरह में, आप वो उनको एज वैसा कंसीडर करो कि जैसे वो विलेज में जा रहा है, वहाँ पे कुछ सर्वे करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट करना है. ओके. Okay. Your village populations. Our village population is I survey this your village because select the populations and improve the land, improve the road traffic survey. So your village population. okay. Our village population is approx 500 pupils. Most of them are farmers. Please share me approx used to average approx 4-wheeler and 2-wheeler driver. 4-wheeler and 2-wheeler driver. Approx I calculate the traffic from in this road. It's not clear what you are saying. हम ये पूछना चाह रहे थे कि मतलब ये रोड पे कितनी ट्रैफिक चलती, मतलब 2-व्हीलर और 4-व्हीलर जो गाड़ियां रहती हैं कितनी ट्रैफिक चलती है, हमको रोड का कैलकुलेशन करना है, इसका डिजाइन करने के लिए तो ट्रैफिक कैलकुलेशन करना है. So you can say I just want to know the traffic, like how many 2-wheelers and 4-wheelers driver are going this way, like ऐसा कुछ. Yes. Sunil, how many travel from 2-wheeler and 4-wheeler transportation? Because I survey this road. Sir, in our village, approximate 100 families. Out of approximate 80 families use a tractor for both the transportation as well as farming, and the rest of use rest are most of pedestrian. You say your village population is 500. Okay. Okay. So You said approx. that means Satyanshu, you said that your village population is approx 500. You said that your village population is 500. Your occupation. So आगे सो लगा So मैं इस पूछना चाह रहा कि इसके बाद मतलब आपके विलेज में 5000 लोग रहते हैं, लेकिन उनका रोजगार क्या क्या है, Sorry, क्या क्या रोजगार अप्रोक्स क्या क्या रोजगार है मतलब. So what are the their ways of income, ऐसा करके बोल सकते हैं, how they earn money. So how they earn money in your village? Sir, as I said, most of our villages are farmers, so most of money they raise from farmers and So what is their source of income ऐसे, so what is their source of income ऐसे करके भी बोल सकते हो. Your village population source of income. Yeah. Just What? you said your village population is approx 5000. So what is their source of income? Okay. Yeah, sources of income ऐसे करके आप बोल सकते हो. You said to village population 500. So What is their what is क्या है? their sources of income? Their sources of income. as I earlier said that most of families in our village are farmers, so their main source of income is agriculture, animal husbandry, and a little bit of small agriculture byproducts. Okay, stop now. Stop. Okay. Okay. Thank you. तो अभी सत्यांशु अभी बोल रहे थे ना ऑक्यूपेशन रिलेटेड चीजें, सोर्सेस ऑफ इनकम रिलेटेड चीजें. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. सत्यांशु में सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. ओके. तो आप
रीडिंग स्टार्ट करो, नॉवेल्स वगैरह रीडिंग स्टार्ट कर दो। अगर आपको नॉवेल्स नहीं पढ़ना है तो एडिटोरियल सबसे बेस्ट है, अगर आप सबके पास नॉवेल्स नहीं है, क्योंकि उस जी मैम हमने ज्यादातर अब रीडिंग आप मतलब स्टार्ट किए हैं तो इसमें क्या किए रीडिंग स्टार्ट में हम आई स्कोर भी रीडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं किसका रीडिंग स्टार्ट किया आपने? कि हमारा आईएएस कोड का हमारा दो फायदा हो जाता जी आईएएस कोड का भी अपना पढ़ लेंगे और हमारा रीडिंग वाला भी काम हो जाएगा, इसलिए हम आईएएस कोड को स्टार्ट। अच्छा, तो जो भी आपका, लेकिन रीडिंग आप करना शुरू कर दो, क्योंकि उससे सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है वो चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है? यस मैम, सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है आपके। यस मैम। ओके देन, और किसी को कुछ पूछना? कोई रह गया? ऋषिकेश का रह गया? ऋषिकेश मैम व्हाट अबाउट मी? कौन? सुनील का सही था, कोई दिक्कत नहीं था, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है जी जी। और बाकी सबका भी ठीक था। मैम अमन का भी थोड़ा प्रॉब्लम था जी। कौन बोल रहा है? सुनील जी मैम। जी। मैम क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? जी सैटरडे सॉरी फ्राइडे वाला मैम कोई भी क्लास का लिंक नहीं आता मैम रिकॉर्डिंग का। आप लोग के पास नहीं गया है अभी तक? नो मैम। मीन्स एक भी क्लास का नहीं गया अभी तक? नहीं मैम, है अवेलेबल है सर। तो जैसे कहाँ पर है? ग्रुप में अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। है ना, यूट्यूब पे है सर, अवेलेबल है। यूट्यूब पे है। यूट्यूब का लिंक कहाँ से मिलेगा? ग्रुप में लिंक शेयर कर दो। स्किल्स ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, स्किल चैनल है उस पे। चैनल का भी जो लिंक है आप ग्रुप में एक बार शेयर कर दो ताकि सबको अवेलेबल हो जाए। अगर आप लोग के पास है, जिसके पास भी है, तो एक का शेयर कर दो, सब लोग वहाँ से फॉलो कर लेंगे। ओके जी ओके देन, और किसी को कुछ पूछना है? Anyone wants to ask anything? Rishikesh, can you please turn on your mic? Rishikesh, are you there? Is your yeah, Satyanshu, you wanted to say something? यस मैम एक ये जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये डिस्कस ना मैम डेली अगर रहे ना आधी हाफ आवर्स तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। होगा एक्चुअली क्लास क्या है ना, क्योंकि इससे अभी तक थोड़ा मैं बोलने का एडिटोरियल बोलेंगे लेकिन मैम बोलने का धड़का थोड़ा खुलेगा। वो धीरे धीरे होगा। एक्चुअली मैं एडिटोरियल पे इसलिए फोकस करना चाहती हूँ ताकि आप लोग की रीडिंग हैबिट थोड़ा स्टार्ट करवा दें, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़रूरी है। एंड उसके साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को आप गूगल करके समझ सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है, और उससे पता कर सकते हो नाउन क्या, प्रोनाउन क्या है, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, मीन्स स्टार्टिंग में क्या यूज़ किया जा रहा है, आखिरी में क्या यूज़ किया जा रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट पार्ट में क्या है, आपका सब्जेक्ट पार्ट में क्या है। ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी था, इसलिए एडिटोरियल पार्ट करवाना ज़रूरी था। इसके अलावा ग्रामर पार्ट आपका ये सब चल ही रहा है और ये करना भी ज़रूरी है। बिना ग्रामर पार्ट के आपका कन्वर्सेशन तो हो नहीं सकता अच्छे से, तो इसलिए उस पर फोकस किया जाएगा। साथ में कन्वर्सेशन आपका 20 से 25 मिनट कन्वर्सेशन को दिया जाएगा डेली। हर एक को एक एक टॉपिक दी जाएगी आपस में बातचीत करने के लिए, क्योंकि ऐसे फिर आप बात करोगे तो जो भी मिस्टेक होगा वो चीज़ें बताई जाएंगी। और कोई भी कन्वर्सेशन आप करो तो हमेशा ग्रीटिंग करो। जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और रास्ते में किसी एक्सक्यूज़ मी सर करके, टीचर है तो गुड आफ्टरनून सर, एचआर है तो गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ऐसे करें, या फ्रेंड है तो हेलो हाउ आर यू ऐसे करके, ठीक है? ऐसे कन्वर्सेशन आप स्टार्ट करना, ग्रीटिंग हमेशा करो। जब कुछ पूछ लिया आपने थैंक यू, तो आप जो दूसरा पर्सन होगा नॉट एट ऑल इट्स ऑल प्लेजर ऐसे करके आप एंड कर सकते हो कन्वर्सेशन। ओके ठीक है, फिर और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? ऋषिकेश, आई स्टिल वांट टू लिसन योर वॉइस, मीन्स इट्स, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाउ वाज द क्लास? एनी रिव्यू? आई जस्ट वांट द रिव्यू नाउ। गुड मैम। गुड मैम। समझ में आया? यस यस मैम। ओके, कोई बोरिंग जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है? नो मैम। ओके, लास्ट का पार्ट सही। लास्ट का पार्ट कन्वर्सेशन? यस मैम। ओके, मीन्स वो ग्रामर पार्ट बोरिंग था? लिटिल बिट।
लिटिल बिट यस मैम, ग्रामर पार्ट बोरिंग रहता है हमको थोड़ा। वो बोरिंग हो लगेगा थोड़ा। अगर गेम के थ्रू करना है तो गेम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी मैं, बट गेम क्या है, बच्चों को कराने के लिए होता है, मीन्स प्रोफेशनल्स को कराने का मतलब होता है कि थोड़ा वो हो जाता है, बचपना जैसा हो जाएगा फिर। नो मैम, ओके देन कन्वर्सेशन थोड़ा बढ़िया रहता है, और कॉन्वर्सेशन वाला, ग्रामर वाला हमको कुछ समझ में नहीं आता है। ग्रुप डिस्कशन, जैसे हर एक को एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे अभी कन्वर्सेशन कल मैं नहीं करूँगी, कल मैं हर एक को एक टॉपिक दूंगी, उस पर आपको 2 मिनट बोलना रहेगा, मीन्स आपस में नहीं। तो अपने से टॉपिक चूज कर लेगा? नहीं, मैं दूंगी टॉपिक। टॉपिक इजी क्या? रहेगा, डेली लाइफ रिलेटेड रहेगा, टफ नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि Okay. हमें मेन फोकस करना है कि हमें बोलना है लोगों के सामने। कॉन्फिडेंस, अभी फिलहाल कॉन्फिडेंस का कोई इशू तो मुझे नज़र नहीं आ रहा आज जितने लोगों ने बोला, मीन्स जैसे उस दिन मेरे अंदर है। आप किसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? विकास, सत्यांशु। सत्यांशु, कॉन्फिडेंस नहीं, आप जब बात करें तो उतना इशू मुझे नज़र नहीं है अभी 2-3 कन्वर्सेशन और देखा जाएगा तो पता चलेगा कि ऐसा है क्या। आज तो मुझे किसी में कॉन्फिडेंस का वैसा इशू नज़र नहीं है, बस सेंटेंस फॉर्मेशन वाली दिक्कत ही सत्यांशु, वरना और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके देन, क्लास एंड करते हैं। कुछ बोलना था आपको सत्यांशु? नहीं, Okay then, everyone take care and have a nice day. Take- Good night. Good night, ma'am. गुड नाइट मैम। Good night. Good night, ma'am. Good night.